ملک بھر کے صارفین کو بجلی کا بڑا جھٹکا۔ نیپرا نے بنیادی ٹیرف میں 4 روپے 96 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی۔ بجلی کی فی یونٹ قیمت 24 روپے 82 پیسے سے بڑھ کر 29 روپے 78 پیسے ہو گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ملک بھر کے صارفین پر بجلی کا میگا بمپ گرا دیا گیا۔ رواں مالی سال کے لیے بنیادی ٹیرف میں 4 روپے 96 پیسے کا بڑا اضافہ فی یونٹ بجلی 29 روپے 78 پیسے پر جا پہنچی۔ اوسط فی یونٹ قیمت 50 روپے سے تجاوز کر جائے گی۔ اطلاق کس ماہ سے ہوگا، حتمی منظوری حکومت دے گی۔ نیپرا اعلامیہ کے مطابق روپیہ کی قدر گرنے، بجلی کی فروخت میں کمی اور کیپیسٹی پیمنٹ بنیادی ٹیرف بڑھنے کی وجوہات ہیں۔ ٹیرف بڑھنے سے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے ریونیو کا تخمینہ 3281 ارب روپے متوقع ہے۔ خبر یہ ہے، غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی۔ 2 ہفتے میں آٹے کا تھیلا 400 روپے تک مہنگا ہو چکا۔ آٹے کے نرخوں میں مزید تیزی کا خدشہ موجود ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ آٹا بھی غریب کی پہنچ سے دور ہونے لگا۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 2900 روپے تک پہنچ گیا۔ 10 کلو آٹے کا تھیلا 1450 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ 15 کلو آٹے کا تھیلا 2400 روپے میں مل رہا ہے۔ کھلے آٹے کے نرخ میں بھی اضافہ۔ کھلا سرخ آٹا 140 روپے فی کلو ہے۔ کھلا سفید فائن آٹا 150 روپے فی کلو دستیاب۔ چکی کا آٹا 170 روپے فی کلو بیچا جا رہا ہے۔ عوام کہتے ہیں آٹے کی قیمت کو تو کنٹرول ہونا چاہیے، لگتا ہے غریب کا کسی کو خیال نہیں۔ غریب آدمی کا جینا مشکل کر دیا اس حکومت نے۔ جو حکومت آتی ہے مہنگائی سے مہنگائی، ہر حکومت مہنگا کرتی رہتی ہے۔ ابھی 4 سال پیچھے چلے 750 روپے کا 20 کلو کا آٹے کا توڑا تھا، اور 29 ہو گیا۔ آمدنی وہیں کی وہیں ہے، کہاں سے انسان جیے؟ جب یہ لوگ آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا جی ہم سب چیزیں سب ریٹ کم کریں گے۔ اگر آپ اکارڈنگ ٹو لاسٹ گورنمنٹ کے چیک کریں تو ان کے ریٹ کم تھے اور ان کے ریٹ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، اور انہوں نے لون بھی لے لیا۔ آپ پتہ نہیں آگے یہ کیا کریں گے۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق گندم کی قیمت میں تیزی سے آٹا مہنگا ہو رہا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں گندم کی فی من قیمت 4800 روپے ہے۔ آنے والے دنوں میں آٹے کی قیمت میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ 200 من سے زائد گندم کی سٹوریج پر پابندی سے نرخ مزید بڑھیں گے۔ چیئرمین پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا نے خبردار کر دیا۔ سیکرٹری خوراک نے جلد بازی میں یہ اقدام اٹھایا۔ صورتحال برقرار رہی تو گندم کی قلت کا بھی اندیشہ ہے۔ اس ٹائم پہ جو سیکرٹری فوڈ نے کل ایک فیصلہ کیا جس کے اندر 200 من سے زیادہ جس کے پاس ذخیرہ ہو اس کو پکڑنے کا جو ڈپٹی ڈائریکٹر اور ڈی ایف سیز کو پریشر کیا گیا، اس سے معاملات خرابی کی طرف گئے ہیں اور مارکیٹ میں ایک دم گندم کی پرائسز بڑھی ہیں، اور اس سے آٹے کی پرائسز بھی آٹومیٹکلی بڑھ گئی ہیں۔ کل سے لے کے آج تک گندم کی پرائسز فی من 50 سے 70 روپے کا اضافہ جو بڑھتا جا رہا ہے۔ ہماری گاڑیاں جہاں پہ بھی لوڈ ہو رہی ہیں وہاں پہ فوڈ کے اہلکار پہنچ کے ان کو پکڑ رہے ہیں۔ تو اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو مارکیٹ میں گندم کی قیمت 5000 سے تجاوز کر جائے گی، اور آٹے کی قیمتیں بھی جو سی ہیں وہ 3000 سے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب اور پرائم منسٹر پاکستان کو ایکشن لیتے ہوئے اس پکڑ دکڑ کو ختم کرنا چاہیے، اور فری ٹریڈ جو ہے اس کا جو ایک سلسلہ آئین پاکستان تحفظ دیتا ہے وہی ہونا چاہیے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے متوسط طبقے کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 12 سبزیاں اور 2 پھل مزید مہنگے۔ برائلر گوشت کی قیمت میں معمولی کمی، فی کلو قیمت 600 روپے سے نیچے نہ آئی۔ عبدالقادر کی رپورٹ دیکھیے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی عوام کے لیے درد سر بن گئی۔ سبزیاں، پھل اور برائلر گوشت پہنچ سے باہر۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 12 سبزیاں مزید مہنگی کر دی گئیں۔ اوپن مارکیٹ میں ٹماٹر 110، لہسن 500، سبز مرچ 100 روپے فی کلو ہے۔ لیمو 200، آلو 100، کریلے اور بھنڈی 200 روپے فی کلو دستیاب۔ شملہ مرچ 150، اروی 200، گھیا توری 150 روپے فی کلو بیچی جا رہی ہے۔ پھلوں میں لیچی 400، آڑو 280، آم 250 اور پپیتا 300 روپے فی کلو ہے۔ عوام کہتے ہیں ہر چیز پہنچ سے باہر ہے۔ چیز کا ریٹ ڈبل ہو گیا۔ چکن کا ریٹ دیکھ لیں 618 سے 200-250 روپے ریٹ ہوا کرتا تھا، اب کیا نام ہے 618 روپے ریٹ چل رہا ہے، 650 618۔ غریب آدمی کے لیے بہت اوکھا ہے، گھر کی ہانڈی پکانے کے لیے جو کماتے ہیں ادھر ہی لگا دیتے ہیں۔ برائلر گوشت 3 روپے سستا ہونے کے بعد 615 روپے فی کلو ہو گیا۔ فارمی انڈے مزید 2 روپے مہنگے ہو کر 249 روپے فی درجن ہو گئے۔ مہنگائی میں اضافہ نہ رک سکا۔ سرکاری اعداد و شمار میں بھی مہنگائی کی شرح بڑھنے کے حوالے سے تسلیم کر لی گئی ہے۔ آٹا، چینی، دالیں، انڈے، چاول سب مہنگے ہو گئے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔
वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.33% इजाफा हुआ, जिससे हफ्तावार महंगाई की शरह 28.96% रही। हालिया हफ्ते के दौरान 21 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। चीनी, आटे का थैला, अंडे, दाल, चावल, खुश्क दूध और लहसुन की कीमतें बढ़ गईं। एक हफ्ते के दौरान चीनी की फी किलो कीमत में 6 रुपए 89 का इजाफा हुआ। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 116 रुपए 28 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फी दर्जन अंडों की कीमत में 3 रुपए 29 पैसे का इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक दालमाश की कीमत में तकरीबन 1 रुपया इजाफा हुआ। हालिया हफ्ते 11 अशिया की कीमतों में कमी और 19 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। तलब बढ़ने पर डॉलर महंगा हो गया। डॉलर की कदर में 1 रुपये 13 पैसे इजाफा। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ डॉलर महंगा हो गया। इंटरबैंक डॉलर रेट 1 रुपये 13 पैसे बढ़ गया। ओपन मार्केट में डॉलर कम अज़ कम 283 रुपये तक रहा। इंटरबैंक डॉलर रेट 270 रुपये 59 पैसे पर बंद हुआ। मार्केट ज़राए के मुताबिक कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ में दरामद कुनिंदगान की जानिब से डॉलर ख़रीदारी की गई, जिससे रुपये पर दबाव रहा। मुल्क भर में गैस सरकारी कीमत पर फरोख्त नहीं हो रही। मुनाफा खोर माल बटोर रहे हैं। LPG इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का LPG महंगी फरोख्त होने पर शदीद रद्द-ए-अमल। फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। लाहौर के मकामी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए LPG इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोखर ने कहा कि ओगरा सूबाई हुकूमतें और LPG माफिया एक पेज पर हैं। कोई भी गैस सरकारी निर्खों पर बेचने के लिए तैयार नहीं। बड़े शहरों में 30 और छोटे शहरों में 50 रुपए मुकर्ररा कीमत से इजाफी वसूल किए जा रहे हैं। रमजानुल मुबारक में 50 अरब रुपए ब्लैक मार्केटिंग करके कमाए गए। नोटिफिकेशन को 8 रोज गुजर गए। ओगरा ने LPG माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। 8 दिन पहले ओगरा ने से मैंने बात की, उन्होंने नोटिस लिया। आज 8 दिन गुजर गए। 8 दिन गुजरने के बावजूद ब्लैक मार्केटिंग करने वालों का किसी का एक लाइसेंस ना कैंसिल हुआ, ना किसी को नोटिस भी जारी नहीं हुआ। इरफान खोखर ने कहा कि LPG का ऑटो सेक्टर में इस्तेमाल रोकने के लिए बनाई गई कमेटी को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने गैर मयारी सिलेंडर बनाने और फरोख्त करने वालों को सख्त सजाएं देने का मुतालबा किया। दूसरी जानिब ओगरा तर्जुमान का कहना है कि गैस की कीमतें कंट्रोल करने के लिए तमाम सूबाई हुकूमतों को हदायत जारी कर दी गई हैं। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। खबर यह है कि गैर कानूनी LPG फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 45 LPG रिफिलिंग स्टेशन को सील कर दिया गया। भाटी में 4, नसीराबाद 6, TBCT 5, शादरा में 11, शफीकाबाद में 8 LPG पॉइंट सील कर दिए गए, जबकि न्यू अनारकली में 4, इस्लामपुरा में 4, लियाकताबाद में 3 LPG रिफिलिंग स्टेशन सरबमोहर कर दिए गए। इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा बनने वालों का तमाम सामान जब्त, मुकदमा दर्ज करवा दिए गए। DC लाहौर आफिया हैदर कहती हैं कि गैर कानूनी गैस रिफिलिंग करवाने वालों को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कीमती जानों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि मुहर्रमुल हराम में बैनुल मसालिक हमआहंगी के लिए ज़वाबित तय किए गए हैं। तमाम उलमा किराम शिद्दत पसंद सोच को मुस्तरद करते हैं। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसल और वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी की लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने इसराइली मंदूब के अक़वाम मुत्तहिदा में बयान की मज़म्मत की। ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा शफ़ाक़ मुल्क इसराइल है। दुनिया में सबसे ज्यादा शफ़ाक़ मुल्क जो है वो इसराइल है, जहाँ पर इंसानी हकूक़ की हम नहीं पूरी कायनात कहती है सबसे ज्यादा 2 मुल्कों में इंसानी हकूक़ की जो है वो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, एक इसराइल के अंदर और एक हिंदुस्तान के अंदर। हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि मुहर्रमुल हराम में बैनुल मसालिक हम आहंगी के लिए ज़वाबित तय किए गए हैं। फिरका वाराना फसादात कौमी जुर्म है। तमाम उलमा इकराम शिद्दत पसंद सोच को मुस्तरद करते हैं। मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान के हवाले से बैनुल मज़ाहिब बैनुल मसालिक हम आहंगी के लिए मंदरजा झैल ज़ाब्ता इखलाक जो है वो आपके सामने और कौम के सामने पेश किया जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा, मशाइख, ज़ाकिरीन, वाइज़ीन, मुफक्किरीन और आइम्मा इस पर अमल दरामद करेंगे जैसा कि माजी में करते रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदा खुसूसी का मज़ीद कहना था कि मुहर्रमुल हराम के दौरान मजालिस और जुलूस के जो रूट मुतय्यन हैं उस पर कानून के मुताबिक अमल किया जाए। कैमरामैन अरसलान के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़।
नामूस कुरान के हक और स्वीडन के खिलाफ रैली शुमाली लाहौर मक्खनपुरा चाहमीरा से लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका ने स्वीडन के साथ सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा किया। राहील अली की रिपोर्ट देखिए। जामे मस्जिद बिलाल मक्खनपुरा चाहमीरा से कारी मोहम्मद आरिफ की क़यादत में हुर्मत कुरान और नामूस रिसालत रैली निकाली गई। उलमा कराम समेत आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। स्वीडन मुखालिफ और हुर्मत कुरान के हक में नारे लगाए गए। कारी मोहम्मद आरिफ का इस मौका पर कहना था कि उलमा और आवाम ने अपना हक अदा कर दिया। स्वीडन से सफारती ताल्लुकात खत्म करके अब हुकूमत अपना हक अदा करे। अवाम उन्नास का जितना काम है अवाम उन्नास तो वो कर रहे हैं, वो रैलियाँ भी निकाल रहे हैं और नारे भी लगा रहे हैं और स्वीडन की मसनूआत का बाइकाट भी कर रहे हैं। अब जो बाकी हुकूमत का काम है सिफारती ताल्लुकात मुनक़ते करना और तिजारती बाइकाट करना, ये हुकूमत का काम है। आवाम के बस में जितना काम है आवाम अपनी ताकत और अपनी वुसअत से बढ़कर ये काम कर रहे हैं। रैली में शरीक उलमा ने खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का ऐलान भी किया। कैमरामैन उमैर रईस के साथ राहील अली, लाहौर न्यूज़। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर गम और गुस्से की लहर। अड्डा शबीर मनावा में अंजुमन ताजरान की जानिब से रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने हुकूमत से स्वीडन का मुकम्मल बाइकआउट करने का मुतालबा किया। मोहम्मद उसामा की रिपोर्ट देखिए। अड्डा शबीर मनावा में अंजुमन ताजरा की जानिब से स्वीडन में होने वाले कुरान मजीद की बेहुरमती के वाक़या के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। बच्चों बड़ों समेत तमाम शोबों से मुतल्लिका शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने स्वीडन के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। अंजुमन ताजरा के सीनियर नायब सदर मलक ओन अब्बास ने खिताब करते हुए कहा कि यूरोप में आए रोज शुआरे इस्लाम की खिलाफ वर्जी नाकाबिले बर्दाश्त है। स्वीडन की जो वहाँ पे बेहुरमती की गई है हमारे कुरान पाक की, अल्लाह के कलाम की, उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और आज हमारा यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद भी यही था कि पूरी दुनिया को ये पैगाम मिले कि इससे इस कुरान पाक पे मैं, मेरे बच्चे, मेरे वालिदैन इस पे कुर्बान। अंजुमन ताजरा की क़यादत ने हुकूमत पाकिस्तान से स्वीडन के सफीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा किया। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ मोहम्मद उसामा, लाहौर न्यूज़। खबर यह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में बड़े नाम अल-फतेह इलेक्ट्रॉनिक्स के एक और आउटलेट का शानदार इफ्तिताह। अल-फतेह इलेक्ट्रॉनिक्स ठोकर न्याज बेग पर लोकल से लेकर इम्पोर्टेड तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत अब बआसानी दस्तयाब होंगी। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। अल-फतेह इलेक्ट्रॉनिक्स ने शहर के अहम इलाके ठोकर न्याज बेग पर भी रौनकें लगा दी। कंपनी की जानिब से रायवन रोड ठोकर न्याज बेग पर नए आउटलेट का इफ्तिताह। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी चेयरमैन FPCCI इरफान इकबाल शेख थे। CEO शेख जमशेद इकबाल और बड़ी बड़ी कारोबारी शख्सियात भी इफ्तिताही तकरीब में शरीक हुई। मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ अल-फतेह इलेक्ट्रॉनिक्स के अपने नेफ्यूज़ को और अपने भाई को जो इसको अपना चला रहे हैं। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जिस तरह से वो लाहौर को सर्विस दे रहे हैं और जिस अच्छे तरीके से वो काम कर रहे हैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इसको और बेहतर करेंगे, अपनी सर्विस को अच्छा करेंगे। ये अल्लाह का शुक्र है कि कस्टमर का हमारे ऊपर एक 42 साल एतमाद है और वो यकीनन बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। मैं अपने कस्टमर्स को यही पैगाम देना चाहूँगा कि इंशाल्लाह इस शोरूम पे उन्हें वैसे ही वैरायटी मिलेगी, वैसे ही सर्विसेज मिलेंगी जैसे कि हमारे सब शोरूम से मिलती हैं। ग्रैंड लॉन्चिंग में शहरियों की बड़ी तादाद ने इंतहाई दिलचस्पी का इजहार किया। शुरका ने एयर कंडीशनर्स, LED, रेफ्रिजरेटर्स, वाटर डिस्पेंसर्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया पर इंतहाई शानदार डिस्काउंट भी हासिल किए। अल-फतेह इलेक्ट्रॉनिक्स ठोकर न्याज़बेग की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत पर 3 रोज तक रियायत दी जाएगी। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। पंजाब की निगरान काबीना ने सूबे के 7 बड़े अस्पतालों की अपग्रेडेशन और इलाज मुआवजे की सहूलतें बेहतर बनाने के प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। सरकारी मुलाजमीन PKLI में भी इलाज करवा सकेंगे। DHQ अस्पताल कसूर और फैसलाबाद का नाम तब्दील करने की भी मंजूरी दे दी गई। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 20वां इजलास। काबीना ने सूबे के 7 बड़े अस्पतालों की अपग्रेडेशन और इलाज मुआलजे की सहूलतें बेहतर बनाने के प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। म्यो अस्पताल, जिन्ना अस्पताल, जनरल अस्पताल, डेंटल अस्पताल, चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर, निश्तर अस्पताल मुल्तान और अलाइड अस्पताल फैसलाबाद की बहाली, तामीर व मुरम्मत और रिस्ट्रक्चरिंग होगी। अस्पतालों की अपग्रेडेशन के लिए 5 अरब रुपए के फंड्स के इजरा की मंजूरी। बच्चों के इलाज मुआलजे की सहूलतों को भी बेहतर बनाने के लिए एहसन इकदाम। पहले मरहले में चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर और इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ मुल्तान में इमरजेंसी में इलाज मुआलजे की सहूलतों को बेहतर बनाया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन के लिए एक और बड़ा इकदाम, PKLI में भी इलाज करा सकेंगे। काबीना ने DHQ अस्पताल कसूर का नाम तब्दील करके बाबा बुल्ले शाह अस्पताल कसूर रखने की मंजूरी दे दी। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल फैसलाबाद का नाम तब्दील करके नुसरत फतेह अली खान अस्पताल फैसलाबाद रखने की मंजूरी दे दी गई। पंजाब काबीना ने गवर्नमेंट
सेंट्रल मॉडल स्कूल लोअर माल लाहौर की अपग्रेडेशन के लिए ग्रांट की मंजूरी दे दी। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। सानहा 9 मई 2 माह में कितनी खवातीन गिरफ्तार, कितनी रिहा हुई? पंजाब पुलिस ने रिपोर्ट निगरान वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी है। इसी पर रिपोर्ट देखिए मुजाहिद लतीफ़ की। पंजाब पुलिस की जानिब से सानहा 9 मई के तनाजुर में 2 माह के दौरान खवातीन की गिरफ्तारी और रिहाई की रिपोर्ट निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को भिजवा दी गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक लाहौर समेत 8 शहरों से 81 खवातीन गिरफ्तार हुई। सबसे ज्यादा 47 खवातीन को लाहौर से गिरफ्तार किया गया। 22 खवातीन को तफ्तीश मुकम्मल होने पर जुडिशल कर दिया गया, जिनमें से लाहौर से गिरफ्तार 21 और रावलपिंडी से 1 खातून शामिल है। 8 शहरों से गिरफ्तार 59 खवातीन को जमानत पर रिहाई मिली। लाहौर की 31, रावलपिंडी की 11 खवातीन को जमानत पर रिहा किया गया। इसी तरह फैसलाबाद की 8 और मुल्तान की 4 खवातीन को जमानत पर रिहाई मिली। वफाकी वज़ीर दाखिला और सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह कहते हैं मुस्लिम लीग नून तमाम हलकों में अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी, किसी से इलेक्शन इत्तेहाद नहीं होगा। नून लीग ने मुल्क को बहरानों से निकाला है, फिर मौका मिला तो महंगाई को जड़ से ख़त्म करेंगे। राना सनाउल्लाह का कहना है कि 9 मई के मास्टर माइंड भी लाजमी कटहरे में लाए जाएंगे। मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी सरगर्मियों का बाकायदा आगाज कर दिया। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन लाहौर में मुस्लिम लीग नून पंजाब के तंजीमी इजलास में तमाम हलकों से पार्टी उम्मीदवारों की लिस्टें तलब कर ली गयी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि महदूद सीट एडजस्टमेंट के अलावा मुस्लिम लीग नून किसी से इलेक्शन इत्तेहाद नहीं करेगी। इंतकाम और नफरत की सियासत पर यकीन नहीं रखते। आइंदा इलेक्शन में मौका मिला तो महंगाई का खात्मा करेंगे। हम वादा करते हैं कि हम इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन में कामयाबी के बाद इस मुल्क को तरक्की पे गामजन करेंगे। गरीब आदमी की ज़िंदगी जो मुश्किल हो चुकी है उसे आसान करेंगे। महंगाई जो नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है उसे जो है वो महदूद करेंगे, उसे उस सतह पे लाएंगे कि आम आदमी जो है वो उसको बर्दाश्त कर सके। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि तमाम सियासी जमातें सियासी डायलॉग पर यकीन रखती हैं। 12 अक्टूबर की मुहिम जोई न होती तो आज पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क होता। 9 मई के मास्टर माइंड भी लाजमी कटहरे में लाए जाएंगे। इंडिपेंडेंटली ये तफ्तीश का अमल जो है ये मुकम्मल होगा। इसमें जो ऑपरेटर हैं जिन्होंने जाके मौके पे काम किया, घराव जलाओ किया, और इसी तरह से जो लेके गए, इसी तरह से जिसने ये माइंडसेट बनाया, जिसने बड़ी मेहनत से जो है वो इस सारे जो है वो मुल्क दुश्मन एजेंडे को आर्किटेक्ट किया, ये सारे लोग जो है ये गिरफ्तार भी होंगे और इंसाफ के कटहरे में जो है ये ट्रायल फेस करेंगे। इजलास में नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारियों को हतमी शक्ल देने का फैसला किया गया। इजलास में परवेज रशीद, अनुश रहमान, अवैस लखारी, शेख आफ्ताब और उस्मा बुखारी समेत दीगर ने शिरकत की। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को किसी भी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने परवेज इलाही के खिलाफ थाना गालब मार्केट में दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमे में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने परवेज इलाही और आसिक इलाही की दरखास्तों पर फैसला सुनाया। परवेज इलाही और आसिक इलाही ने मुकदमात की तफसील और खुफिया मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने की इस्तदा की, जिसकी गुज़श्ता रोज पंजाब हुकूमत के वकील ने मुखालफत की थी। परवेज इलाही के वकील ने दलाल दिए कि परवेज इलाही की किसी भी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तारी रोकी जाए। अदालत ने पुलिस और एंटी करप्शन को खुफिया मुकदमात में परवेज इलाही को गिरफ्तार करने से रोक दिया। साबिक वज़ीर आला को दहशत गर्दी के मुकदमे में भी हिफाजती जमानत मिल गयी। दूसरी जानिब एंटी करप्शन अदालत ने परवेज इलाही की रिहाई की रोपकार पर अमल न करने और एतराज लगाकर रोपकार वापस करने पर शोकास नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने DIG जेल खाना जात से 19 जुलाई को जवाब तलब कर लिया। अदालत ने करार दिया कि DIG जेल खाना जात अदालत में पेश हों। उनको भी इल्म होना चाहिए कि सुप्रिंटेंडेंट जेल ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। जेल सुप्रिंटेंडेंट भी अदालत पेश हुए और कहा कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी का सोच भी नहीं सकते, बस अबहाम की वजह से रोपकार पर अमल दरामद रुका। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने परवेज इलाही की रोपकार पर अमल दरामद रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने बताया कि परवेज इलाही को जाली भर्तियों के केस में रिहाई दे दी, ताहम वो दीगर मुकदमात में अभी भी जेल में हैं।